through UGC guideline, so MHRD scheme of funding. And जब हम लोग इसके बारे में विचार कर रहे थे, वहाँ पर यही प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई जैसे दूसरी स्कीम्स चलती हैं, हॉस्टल बनाने की स्कीम चलती है, या नया कोर्स स्टार्ट करने की स्कीम चलती है, वुमेन्स हॉस्टल की स्कीम है, तो इस तरह की UGC स्कीम बनाने से तो ये काम चलेगा नहीं इसमें। ये तो इसका अप्रोच जो है, अगर हमें सचमुच ये सामाजिक दायित्व का प्रचलन करना है, नई संवेदना। थैंक यू। Education. Thank you so much, sir, for elaborating the issues. Now we feel privileged to have Dr. Rajesh Tandon with us. Before I invite him for the vote, thanks. It is once again my pleasure to introduce Dr. Tandon. Dr. Rajesh Tandon is an internationally acclaimed leader and practitioner of participatory research and development. He founded the Society for Participatory Research in Asia, a voluntary organization providing support to grassroots initiatives in South Asia 28 years ago, and continues to be its chief functionary since 1982. A PhD from Case Western Reserve University and an electronic engineer from IIT Kanpur with a graduation in management from IIM Calcutta. Dr. Tandon has specialized in social and organizational change. Dr. Tandon has authored more than 100 articles, a dozen books, and numerous training manuals on such themes as democratic governance, civic management, civil society, governance and management of NGOs, participatory research, and people-centered development. He has served in an advisory capacity on numerous expert groups of several ministries of central and state governments and the Planning Commission of India. In addition, he has served as advisor to the Commonwealth Foundation, UNDP, and numerous other international agencies. Dr. Tandon serves on the boards of many national and international non-profit organizations. For his distinguished work on gender issues, the Government of India honored Dr. Tandon with a prestigious award in social justice in March 2007. The University of Victoria, Canada, awarded Dr. Tandon the degree of Doctor of Laws honoris causa in June 2008. May I very kindly request Honorable Dr. Rajesh Tandon to deliver the vote of thanks. आपने मुझसे 20 सूत्री भाषण देने को नहीं कहा, जिसकी मेरी पूर्ण रूपेण तैयारी है। मुझे भी लग रहा है कि चाय का ब्रेक होना चाहिए, और इसलिए मुझे वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेवारी शीघ्र निभानी चाहिए। सबसे पहले आदरणीय कमला जी, इस यूनिवर्सिटी विद अ डिफरेंस की वाइस चांसलर पंकज जी, हमारे सहयोगी सह चिंतक कपूर साहब, पवन अग्रवाल जी, HIRD के हमारे पुराने सहयोगी सूरज सिंह जी, प्रो वाइस चांसलर मैडम, रजिस्ट्रार मैडम, महिला विश्वविद्यालय मैडम ही मैडम, जो चर्चा आज सुबह शुरू हुई है, जैसा कि कहा गया कि ये पहला सिंपोजियम है, देश में पहली बार इस विषय पर चर्चा सूरज स्थित से शुरू हुई है। पंकज जी ने आज से 3 महीने पहले ये बात कही कि लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, और कमोबेश आपस में तैयारी करते करते ये सिंपोजियम आज शुरू हो गया। यहाँ पर जो चिंगारी लगेगी उसकी महक, खुशबू और तपन पूरे देश में पहले, इसी उम्मीद के साथ आप सब लोगों को, वक्ताओं को, श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप चाय पीने के बाद पुनः आएंगे और तब मैं अपना 20 सूत्री भाषण आपको दे सकूँ। धन्यवाद।
डॉक्टर टंडन को हम पोस्ट लंच सेशन में दोबारा से सुनेंगे, एक सेशन में वो अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपने अनुभव बांटेंगे हमारे साथ. So don't go away. There are many star speakers even in the post lunch session. Now may I request Honorable Vice Chancellor Dr. Pankaj Mittal ji to present a memento to Honorable Dr. Pawan Agarwal ji. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, we'll start with the first technical session. The tea break has been skipped for the simple reason that we are running short of time. And after this 1 hour session, we'll straight go for the lunch. Anyhow, if anybody wishes to have tea, tea is available outside. He or she can take tea and come back to the session. So we begin with the first technical session. And now we begin with the first session. The session will be chaired by Dr. Pawan Agarwal ji. And I invite the speakers for this session are Dr. Pankaj Mittal, Dr. Rajesh Tandon and Dr. Suhad Singh. ये जो यूनिवर्सिटी और सोसाइटी है ये इंटररिलेटेड है कि टोटली इंडिपेंडेंट है, आपस में इन दोनों में कोई रिश्ता है कि कोई भी रिश्ता नहीं है? क्या हम कभी सोचते हैं कि यूनिवर्सिटीज जो है क्या ये इस समय एक आइलैंड्स की तरह काम कर रही हैं? आइलैंड्स बिल्कुल एक अलग थलग, बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं. क्या यूनिवर्सिटीज एक आइलैंड्स की तरह काम कर रही हैं? क्या उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है सोसाइटी के साथ जो कि होना चाहिए? क्या ऐसा हम कभी सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हम कभी सोचते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए? जितनी भी आसपास की सोसाइटी है उसकी लिविंग कंडीशन, जब हम लिविंग कंडीशंस की बात करते हैं तो मैं सब कुछ उसमें इंक्लूड हो रही है. रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इतना वायलेंस हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं. तो क्या यूनिवर्सिटी का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है? क्या हम इन सबको रोक सकते हैं? जितना भी समाज में, जैसे अभी कपिल कपूर सर ने भी बोला कि सक्सेस इज मेजर्ड विद मनी, और कोई भी जैसे अभी हमारे बच्चे भी जब जाते हैं ये देखते हैं कि किस जॉब में या किस कोर्स में जाएं जिसमें पे पैकेज बड़ा मिले, और जो पे पैकेज ज़्यादा देगा वो सक्सेसफुल है, जो पे पैकेज ज़्यादा देगा वो पोस्ट डिमांड में है. तो सक्सेस इज मेजर्ड विद मनी. तो इस सोच को बदलने के लिए यूनिवर्सिटी कोई भूमिका निभा सकती है? क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो यूनिवर्सिटी कुछ कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के लिए? समाज में अगर प्रसन्नता, खुशी कम हो रही है, मटेरियलिस्टिक समाज ज़्यादा जो हो रहा है, तो क्या यूनिवर्सिटी कुछ कर सकती है? अभी हमने थोड़े दिन पहले, कभी मैंने सोचा ही नहीं था, थोड़े दिन पहले जब मैंने एक अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी कि वेयर हैव ऑल द स्पाइडर्स गॉन, तब मैंने रियलाइज किया कि हाँ, हमें क्यों नहीं सोचते कि स्पाइडर्स कहाँ चली गई, या चली गई तो क्यों चली गई? सचमुच में आज की डेट में स्पेशली शहरों में जो बच्चे रहते होंगे, एक भी चिड़िया नहीं दिखती है. और जब हम खुद छोटे थे तो इतनी सारी चिड़िया दिखती थी. कहते हैं कि इसलिए नहीं दिखती क्योंकि मोबाइल टावर्स आ गए हैं, कहते हैं इसलिए नहीं दिखती कि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया. पर उनको वापस लाने के लिए कुछ करना चाहिए. आज ही मैं हिंदुस्तान टाइम्स में पढ़ रही थी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि स्पैरो को ऑफिशियल बर्ड ऑफ दिल्ली डिक्लेयर करेंगे, जिससे कि किसी और कुछ तरह के तरीके अपनाएंगे जिससे कि स्पैरोज वापस आएँ. पर इन सब में यूनिवर्सिटी की कोई भूमिका है? छोटी सी चीज़ चिड़िया, इसमें यूनिवर्सिटी की कोई भूमिका है कि चिड़िया अगर लुप्त हो गई है तो कहाँ होगी और क्यों होगी, और उसमें लुप्त होने में यूनिवर्सिटी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है, समाज का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या? इसलिए ये सब हो रहा है. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एक एसर एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रथम एक एनजीओ है, प्रथम के साथ मिलकर एक सर्वे करते हैं, उसको कहते हैं एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. उसकी 2011 का एक सर्वे का रिपोर्ट है. वो बहुत सिंपल टूल्स यूज करते हैं, जैसे ये कि उन्होंने हिंदी का टूल दिखाया है कि इस ब्लॉक में लिखा हुआ है उसको कितने बच्चे पढ़ सकते हैं, और वो बच्चे कौन सी क्लास के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 से लेके 5वीं क्लास तक के लिए सेम टूल कि इस सेंटेंस को कितने फर्स्ट क्लास के, कितने सेकंड क्लास के, कितने थर्ड क्लास के, कितने फोर्थ क्लास के, कितने फिफ्थ क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं.
ये हिंदी का टूल है, नेक्स्ट इंग्लिश का टूल है। ये सिंपल जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको कितने बच्चे इन सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं। इसी तरह एक मैथ्स का टूल है, ये मैथ्स का टूल है। इसमें सबसे पहले तो ये नंबर रिकग्निशन थी, कितने लोग ये रिकग्नाइज कर सकते हैं कि 1 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 3 लिखा है। कितने बच्चे ये रिकग्नाइज कर सकते हैं, डबल डिजिट में ये 52 है, ये 27 है, कितने बच्चे रिकग्नाइज कर सकते हैं। फिर आपको सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, जमा और गुना इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जिसको सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आता है उसको जमा गुना अपने आप आता ही होगा। इतने सिंपल से टूल। और क्योंकि पंजाब हमारे साथ में है तो हमने सोचा पंजाब और हरियाणा का डेटा कंपेयर करते हैं। तो पंजाब और हरियाणा का जो डेटा कंपेयर किया तो ये पंजाब का डेटा है। 5वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चे भी करीब 80% बच्चे पढ़ सकते हैं उन सिंपल सेंटेंसेस को, बाकी बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। उनकी 5वीं क्लास पास हो रही है पर वो पहली क्लास का जो डेटा है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी तरह हर क्लास का इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, कि कितने बच्चे पहली क्लास की उसको पढ़ पा रहे हैं, 5वीं क्लास तक पढ़ पा रहे हैं। पर जैसे एक्सपेक्टेड है कि 100% एटलीस्ट पहली क्लास वाला पढ़ पाना चाहिए, वो नहीं है। हरियाणा का डाटा देखिए, आपको शॉक लगेगा। हरियाणा के डेटा में शॉकिंग चीज क्या है, ओवर द इयर्स द नंबर इज रिड्यूसिंग। पहले ज्यादा 5वीं पास पहले ज्यादा लोग पढ़ पाते थे, धीरे धीरे 5वीं क्लास के बच्चे फर्स्ट क्लास की किताबें या जो टेस्ट दिया है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब हरियाणा में हम कह रहे हैं हरियाणा एजुकेशन हब है, हमने बहुत सारे उसमें वो बढ़ाए हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ाई हैं, कॉलेजेस बढ़ाए हैं, इंस्टीट्यूशन बढ़ाए हैं, पर हरियाणा का डेटा नीचे क्यों गिर रहा है? ऐसा क्योंकि पहले कौन से साल में पहले अराउंड 85% पढ़ पाते थे और अब अराउंड 70% बच्चे पढ़ पा रहे हैं। 30% बच्चे 5वीं क्लास पास कर लिया पर पहली क्लास की किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हैं। हमने सोचा कि पंजाब और हरियाणा में मे भी पंजाब ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है उनको। नेक्स्ट देखो, जब हमने ये देखा थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने ये देखा कि सारी जगह पे हरियाणा वाज बेटर इक्विप्ड। अगली एक दो स्लाइड पे जिसमें ये दिखाएंगे नंबर ऑफ कॉमन रूम्स, नंबर ऑफ टॉयलेट्स, नंबर ऑफ ऑफिसेज, सब कुछ हरियाणा में ज़्यादा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हरियाणा में ज़्यादा, प्राइवेट स्कूल्स भी हरियाणा में ज़्यादा। पर दिक्कत क्या हो गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा, फैसिलिटीज में ज़्यादा, उसके बाद भी हरियाणा का नंबर नीचे आता चला जा रहा है, पंजाब का नंबर ऊपर जा रहा है, जबकि दोनों नेबरिंग स्टेट हैं, सिमिलर कंडीशंस में। ऐसा क्यों हो रहा है? किसकी प्रॉब्लम है ये? इज इट द प्रॉब्लम ऑफ द स्कूल एजुकेशन? जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वो टीचर्स कहाँ से गए हैं? हमारे हायर एजुकेशन से गए। उस स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ से आए हैं? हमारी सोसाइटी से आए हैं। तो हमारी सोसाइटी, हमारे हायर एजुकेशन के टीचर्स, उसके बाद भी स्तर गिर रहा है। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द हायर एजुकेशन सिस्टम, something wrong with the learning abilities, something wrong with the dedication of teachers, something wrong. There is something wrong. There has to be something wrong. जैसे कहा था ना, अगर नेहरू जी ने कहा था कि if all is well with the universities, all is well with the nation, उसका उल्टा भी ट्रू है। It looks nothing is well with the nation, that means nothing is well with the universities. तो कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना है, और वो प्रॉब्लम हमें एड्रेस करनी है। हमें ये नहीं देखना कि रेल पर तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, अगर स्कूलों में स्तर गिर रहा है तो ये स्कूल एजुकेशन का प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है अगर हम समाज को और यूनिवर्सिटी को जोड़ के देखेंगे। जैसे ही हम उनको जोड़ना शुरू करेंगे, जैसे ही हम ये सोचेंगे कि समाज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज का हर बच्चा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है, समाज का बढ़ना और यूनिवर्सिटी का बढ़ना पैरेलल है। अगर यूनिवर्सिटी बढ़े तो समाज भी बढ़े और समाज बढ़े तो यूनिवर्सिटी भी बढ़े। अगर इन दोनों की ग्रोथ एक साथ है तो हमारी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अब क्या हमने ये सोचते हैं कि क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। जो शुरू के सेशन में आपको मैं बता रही थी कि एक सब ग्रुप बनाया था क्लाइमेट मिशन में, उस सब ग्रुप में बहुत बड़े बड़े लोग थे। कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो सोनिया गांधी जी की है उसके मेंबर भी थे। उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशंस सोचे। कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उसको किस तरह से अभी तक हमने किया या आप सब कर सकते हैं। और ये सिम्पोजियम इसीलिए किया गया है कि हम आप सबसे बात करके ये देखें कि क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम समाज में और
यूनिवर्सिटी में किस तरह से तालमेल बिठा सकते हैं, किस तरह से कनेक्शन बिठा सकते हैं जिससे कि समाज भी बढ़े और यूनिवर्सिटी भी बढ़े। और समाज की जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे, एकदम से तो कुछ नहीं होता, तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो। जैसे एसर के सर्वे की मैं बात कर रही थी, एसर का था सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे के बेसिस पर उन्होंने पूरे स्टेट को बता दिया, हर स्टेट का उन्होंने बता रखा है कि इस स्टेट में क्या कंडीशन है एजुकेशन की। उसी समय मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से बात की कि लेट अस डू अ सेंसस सर्वे इन हरियाणा, जिससे कि हमें ये पता चले कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्कूल में, कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि और ये सारे काम कौन कर सकता है, यूनिवर्सिटीज कर सकते हैं। वी हैव हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद अस हु कैन डू सर्वेज लाइक दिस टू फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी अगर पॉलिसी डिसीजन लेना है तो पॉलिसी डिसीजन के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि असलियत क्या है। तो वो अगर हम करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है। तो हम पॉसिबल सॉल्यूशंस पे जा रहे हैं। पहला सॉल्यूशन है लिंकिंग लर्निंग विद कम्युनिटी सर्विस, कि जो भी हम सीख रहे हैं उसको कम्युनिटी के साथ लिंक करें। जैसे इसमें एक समर्थ भारत अभियान चलाया था पूना यूनिवर्सिटी में। उन्होंने ये किया था कि उनके सारे बच्चे कम्युनिटी में जाते थे, उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो कम्युनिटी में होते थे। कम्युनिटी मतलब जो आसपास की विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, इवन अर्बन एरियाज हैं, कम्युनिटी में जाके, जैसे अगर केमिस्ट्री के बच्चे हैं तो वो जाएंगे और सॉइल एनालिसिस करेंगे और किसानों को बताएंगे कि आपकी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, कौन सा मैन्योर आपको डालना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए। या वाटर एनालिसिस करेंगे, ये बताएंगे कि जो पीने का पानी है ड्रिंकिंग वाटर है भी कि नहीं, जिसको हम पीते चले जा रहे हैं। मान लो ज्योग्राफी के बच्चे हैं, जैसे आनंद मोहन साहब हैं, ज्योग्राफी के बच्चे जाएंगे और गांव में उसकी जियो मैपिंग करेंगे। इस तरह के बहुत सारे काम हम खुद कर सकते हैं अपने बच्चों के द्वारा, अगर हम लिंक करें लर्निंग को कम्युनिटी सर्विस के साथ। जैसे इन्होंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए मिल्किंग के। हमारे पास एक सेंट कैथरीन यूनिवर्सिटी से यूएसए से 20 बच्चों का ग्रुप आया था। वो गांव में गए, गांव में उन्होंने देखा कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, बहुत कुछ सीखा। जितने भी हमारे पास, जैसे सर कह रहे थे कि गांव वालों में हीन भावना है, पर जितने भी हमारे पास फॉरेन डेलीगेशन आते हैं सबके सब उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि हम गांव में जाएं, उनकी लाइफ देखें, उसको समझें कि वो किस तरह से रहते हैं, और वो देखें कि भारत के लोग इतने खुश क्यों रहते हैं। जैसा कहते हैं ना कि भारत और अमेरिका में, किसी ने पूछा क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका वाले मंगल में जीवन ढूंढते हैं, हम जीवन में मंगल ढूंढते हैं। तो हम लोग अपने जीवन में मंगल ढूंढते हैं, तो उस मंगल को ढूंढना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा तरीका लिंकिंग रिसर्च विद कम्युनिटी नॉलेज। जैसा अभी मैं बता रही थी कि हम सर्वे कर सकते हैं, इस तरह के सर्वे हमारा कोई भी डिपार्टमेंट कर सकता है, इंग्लिश का डिपार्टमेंट कर सकता है, हिंदी का कर सकता है, एजुकेशन का कर सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी सर्वे कर सकता है। और यूनिवर्सिटी अगर हम रिसर्च, इसमें हमने लिखा है कि वेरियस फैसिलिटीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डिवाइस जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम, पार्टनरशिप करें, हम समाज के साथ पार्टनरशिप करें और जॉइंट प्रोग्राम्स करें, जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स करें। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि हम जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स जब बच्चे करते हैं या टीचर्स भी करते हैं, उसके लिए उनको कुछ क्रेडिट भी मिलता है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में ये प्रोविजन होना चाहिए कि अगर इस तरह के जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स चाहे बच्चे कर रहे हैं या इवन टीचर्स कर रहे हैं, तो ये नहीं कि जो पब्लिश्ड रिसर्च है उसी में उनको कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह का रिसर्च है, छोटी छोटी रिसर्च है जो गांव में जाके गांव फायदे के लिए की जाती है, उस रिसर्च के लिए भी, जैसे क्योंकि आजकल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम में हर एक को नंबर चाहिए, चाहे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, चाहे रिसर्च करने के लिए, चाहे पेपर पब्लिश करने के लिए, तो इसका भी नंबर कर देना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स गाँव में जाएंगे, उनके साथ कुछ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करेंगे। तीसरा है नॉलेज शेयरिंग एंड नॉलेज मोबिलाइजेशन। हम थोड़ा सा तो हम लोग हमेशा ये समझ के आते हैं कि गांव वाले जो हैं उनको या तो समझ नहीं है, सारी समझ हमारे अंदर ही है, हम ही उनको जाके समझाएंगे तब वो कुछ करेंगे। पर इट इज़ बोथ वेज, बहुत सारी समझ गांव वालों को भी है जो हमें उनसे लेनी है, कुछ हमारे पास है जो हमें उनको देनी है। जैसे अभी मैं शुरू बता रही थी CSO यार्ड में हमने प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें एक प्रोग्राम में फोक मेडिसिन था। तो फोक मेडिसिन के प्रोग्राम में हम गांव वालों से जाके सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं कि उनको जो पुरानी चिकित्सा पद्धति थी, जो ये उनको रूरल मेडिसिन कह लो या जो घरेलू चिकित्सा के उपाय हैं, वो कैसे कैसे करने चाहिए, हम उनसे सीखते हैं। प्रॉब्लम उनके साथ क्या है उस तरह के उपायों के साथ कि एक तो उनका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है,
पर एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन का मेरा मतलब है कि मान लो उन्होंने बताया कि हल्दी ठीक है जुकाम के लिए, अब कितनी हल्दी वो बताएंगे, एक चुटकी हल्दी, तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, तो ये पता नहीं चलता कि कितनी हल्दी, चुटकी हल्दी और कितनी बार किस तरीके से पानी से, गर्म पानी से, दूध से किसके साथ लेनी है, ये नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मैंने से डॉक्यूमेंटेशन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे गांव की बड़ी बूढ़ी लेडीज में है उनके साथ ही चली जाएगी, क्योंकि हमने उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं कर रखा, हमने कहीं लिख नहीं रखा कि किस चीज़ के लिए क्या अच्छा रहेगा, तो हमें उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, फिर जो गांव की जो विरासत है, जो नॉलेज है, वो हमारे पास आएगी और हम उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे भेज सकते हैं, इस तरह का काम। और फिर जैसे बहुत सारे गांव के लोगों को समझ नहीं होती, जैसे अभी पिछली बार सीएम साहब आए, उन्होंने हमारे खानपुर विलेज के लिए 1 करोड़ रुपए अनाउंस किए, खानपुर को 1 करोड़ देंगे, भैंसवाल को 1 करोड़ देंगे। हमने अपने सरपंच से पूछा कि आपको पता है इस करोड़ को कैसे खर्च करेंगे, कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे, कह रहे हैं हम बैठ जाएंगे, जो कहेगा उसी हिसाब से उसको खर्च करके प्रपोजल भेज देंगे, बट दिस इज नो वे, दैट इज नॉट द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। So there has to be someone who should tell them, or they should tell कि हाँ this is the best way और these are our problems, उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट में हमने MA शुरू किया जिससे कि वो समझ सके कि गांव की ज़रूरतें क्या हैं और उनको किस तरह से ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं। उसी 1 करोड़ रुपए को आप ऐसी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका बेस्ट यूज़ ना हो, और ऐसी में भी कर सकते हैं कि उसका बहुत सारे लोगों को लाभ हो। उस तरह का लाइक लीगल एड है, गाँव की लेडीज़ को पता ही नहीं होता कि किस तरह से उनको कानूनी सलाह मिल सकती है। उनको लीगल एड सेल में हमारे बच्चे जाते हैं, उनको बता के आते हैं कि किस किस तरह से करते हैं। हमारे ही बच्चों ने गांव में जाके सेल्फ हेल्प ग्रुप खोले। अभी आपको लंच के बाद हमारी जो लेडीज हैं जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप खोले, अनपढ़ हैं पर वो इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ आके बताएंगी कि हमने, हमारी यूनिवर्सिटी ने उनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदली, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के बदलने के साथ साथ कैसे यूनिवर्सिटी के बाहर के लोगों की ज़िंदगी भी बदल रही है, वो खुद अपनी तरफ से ये बताएंगी कि वो कैसे कैसे उन्होंने ये सब सीखा। तो RTI है, और इसी तरह कंप्यूटराइज्ड लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें गाँव वाले उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि स्कीम एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, एग्जिस्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा कैसे उठाना है। तो हमारे जो बच्चे जाते हैं गांव में वो तो ये भी समझाते हैं कि ये गवर्नमेंट की स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं एंड हाउ यू कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दोज स्कीम्स। देन डिवाइजिंग न्यू करिकुलम एंड कोर्सेज। अब ये जो समाज से हमारा रिश्ता है, ये हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी सोसाइटी इंटरफेस करना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ स्टैंड अलोन एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि जैसे हम बाकी पढ़ाई तो अलग कर रहे हैं, समाज के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको अलग से रख रहे हैं। It has to be integrated with the curriculum। जो हमारा करिकुलम है वो इस तरीके से हो कि समाज की ज़रूरतें और हमारे बच्चों को समाज के प्रति चेतना, वो दोनों को दोनों इसके पार्ट हो। It should be a part of the curriculum। अगर ऐसा हम करेंगे तो ऑब्वियसली अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपनी स्टडीज़ में ही ये सब कुछ आ जाएगा कि बच्चे समाज की प्रगति में कैसे भागीदार बन सकते हैं। जैसे मैं बताया कि इंग्लिश के जो बच्चे हैं, दे कैन राइट इन हिस्ट्री ऑफ विलेजेस, लाइक राइटिंग विलेज हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम भागीदारी नहीं करते हैं समाज के साथ। अब हमारे पास अगर हमने इंडिया के जितने भी विलेजेस हैं उसकी हिस्ट्री है नहीं है, और कितनी जल्दी लिखी जा सकती है। कोई कहेगा पता नहीं 50 साल लगेंगे, पर नहीं, 50 साल नहीं लगेंगे अगर हर यूनिवर्सिटी कह दे कि हमारे आसपास के जो गांव हैं हम अपने बच्चे भेज के वहाँ की हिस्ट्री लिखेंगे, तो 1 साल पूरे गांव की हिस्ट्री लिखी जा सकती है। पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ को उस तरफ सोचना पड़ेगा, हमारे बच्चों को, हमारी फैकल्टी को उस तरफ सोचें, तो इस तरह के काम हो सकते हैं। हम अपने जो प्रिजर्व कर सकते हैं ट्रेडिशंस, जो हमारे ट्रेडिशंस लुप्त होते चले जा रहे हैं, हमारे जो फोक डांस है, फोक म्यूज़िक है, फोक लोर है, फोक टेल्स है। आजकल बच्चे कहानियाँ नहीं सुनते हैं सोते हुए अपनी माँ से या दादी से या नानी से। पहले कहानी सुन के बच्चे सोया करते थे, अब TV देखते देखते बच्चे सोते हैं, वो भी काफ़ी देर से। तो वो हमारा सब कुछ लुप्त हो रहा है, तो हम धीरे धीरे उसको वापस ला सकते हैं अगर हम उसको करिकुलम के साथ ही इंटीग्रेट कर लें। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग प्रैक्टिशनर्स एज टीचर्स, कि गांव में जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब जो गांव में रहते हैं, उनके पास भी बहुत सारा ज्ञान है। जैसे हम कह रहे थे उनके साथ हम ज्ञान साझा कर सकते हैं, तो हम जो गांव के लोग हैं उनको भी बुला सकते हैं यहाँ पे लेक्चर देने के लिए। और ज़रूरी नहीं कि वो बड़ी रिफाइंड लैंग्वेज में इंग्लिश में ही लेक्चर देंगे, और मान लो हमारे गांव की औरतें हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा वाटर मैनेजमेंट कौन जानता है?
वाटर मैनेजमेंट वो करते हैं, उनके पास लिमिटेड वाटर होता है, उसी पानी में वो सारे दिन का पूरे परिवार का खर्चा चलाती हैं। तो उनसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट कौन जानता है, या उनसे ज़्यादा अच्छा टाइम मैनेजमेंट कौन जानता है? पर हम सोचते ही नहीं कि उनको भी कुछ पता होगा। हम उनसे सीख सकते हैं वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक्स, दे विल टेल यू एंड दे टेल यू इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, क्रूड लैंग्वेज, पर नॉलेज विल बी देयर इन दैट व्हाटएवर दे आर टेलिंग। सो प्रैक्टिशनर्स को एज ए टीचर भी इंक्लूड करना चाहिए, चाहे वो गांव के सरपंच हो, चाहे गांव की आम औरत हो, चाहे वो फोक मेडिसिन पे हो या ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम्स पे हो, ये सब नॉलेज हम गांव से ले सकते हैं। और लास्ट है सोशल इनोवेशंस बाय द स्टूडेंट्स। अब हमारे जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे मुझे लगता है कम हैं, पर हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे या बाहर के बच्चे भी, बच्चे अगर खुद सोचे, बच्चों का दिमाग सबसे ज़्यादा फर्टाइल माइंड होता है, बच्चे सबसे ज़्यादा सोचते हैं, वो इतना अच्छा सोचते हैं कि दे कैन डू वंडर्स। बच्चों जितने भी आप यहाँ बैठे हो, आप लोगों में इतनी शक्ति है, इतनी अद्भुत शक्ति है कि आप लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर उस डायरेक्शन में सोचो। सिर्फ कोर्स खत्म करना, एग्जाम देना, एग्जाम में पास आना, फर्स्ट आना, नई जगह एडमिशन लेना, इसके परे भी थोड़ा सा सोचो कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। और जैसे सोचोगे आप कितना कुछ कर सकते हैं। जैसे सोशल इनोवेशंस में मैंने बताया था, हमने एक उपले बनाने की मशीन बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ आइडिया कहाँ से आया कि जब हमारे पास लोग मिलने आते थे, क्योंकि रूरल यूनिवर्सिटी है तो गाँव के भी बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो जब मिलने आते थे तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि गोबर के उपले बनाना हमारे लिए नेसेसिटी है, पर वो इतना गंदा काम माना जाता है कि कोई उसको करता ही नहीं है। और अब तो ये भी कहते हैं कि हम अपनी लड़की की शादी उस घर में नहीं करेंगे जहाँ गोबर का काम होता है। टू दिस एक्सटेंट उसके लिए हेट्रेड हो गया। तो हमने लगा कि अगर इसकी ज़रूरत है उपलों की और गंदगी उनकी वजह से ये नहीं कर रही हैं, तो लेट अस मेक ए उपला मेकिंग मशीन। तो हमने उपला मेकिंग मशीन बनाई जिसमें गोबर डालते हैं, घास फूस डालते हैं और छोटे छोटे सांपों की टिक्कियाँ की तरह उपले बन के आते हैं। इसी तरह जैसे कपिल कपूर सर कह रहे थे, वो जो गोबर गैस प्लांट है वो फेल हो गए, हरियाणा में ज़्यादातर गोबर गैस प्लांट फेल हो गए। क्यों? अगेन उस गंदगी की वजह से। तो हम एक वर्क कर रहे हैं जिसमें इंडिविजुअल गोबर गैस प्लांट, जैसे ये छोटा सा, इतना छोटा सा गोबर गैस प्लांट होगा, उसमें कोई गंदगी नहीं होगी, उसमें गोबर डाल दो, सीधा उसी के ऊपर बर्नर रख के उसी के ऊपर से गैस निकलेगी। एक जो हम अभी आपको दिखाएंगे, फिटनेस कम वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आप लोगों ने घरों में देखी होगी, बिजली से चलती है। हमारी वॉशिंग मशीन बिजली से नहीं चलती है, ये साइकिल से चलती है। अभी यहाँ पे रखिए, जैसे ही मेरा भाषण खत्म होगा आपको फिटनेस कम वॉशिंग मशीन दिखाएंगे। छोटा सा इनोवेशन है, हमारी एक टीचर मंजू सर होगा, मंजू वेयर आर यू? शी हैज डिजाइन्ड इट अलॉन्ग विद, अभी आगे रखो, शी हैज डिजाइन्ड इट ओनली विद 3-4 स्टूडेंट्स एंड इन हाउ मेनी डेज? 3 days. In 3 days she has designed it. मैं अपना भाषण खत्म करती हूँ। मंजू आपको एक्सप्लेन करेगी कि इन्होंने मशीन कैसे बनाई है, और इस तरह की छोटी छोटी चीजें मैं चाहती हूँ कि आप सबके दिमाग में आए, है ना। और इसके अंदर ये ड्रम चल रहा है, इससे कपड़े चले। और फिटनेस की फिटनेस, जो हम सबको मोटे होने की प्रॉब्लम है, फिटनेस की फिटनेस और कपड़े भी खुलेंगे और बिजली की बचत होगी। इस तरह के छोटे छोटे इनोवेटिव आइडिया। ये जो मैंने सोची थी वो इलेक्ट्रिसिटी थी कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आती है, कुछ आवर्स के लिए आती है, तो हमारे सुबह अगर कपड़े मशीन में डाले तो शाम तक पड़े रहते हैं। तो इसमें सिंपली ये है कि आप साइकिलिंग करेंगे, एक्सरसाइज होगी साथ साथ, और आपकी मशीन भी ऑपरेट होगी। इसमें हमने मोशन ट्रांसफ़र किया है चेन से पुली के, उस पुली को कनेक्ट किया रोटर के ड्रम के साथ, तो वो मोशन वहाँ से फिर रोटर पे ट्रांसफ़र होगा और उससे आपकी मशीन जो है वो चलेगी। तो इसमें अभी ये जो मशीन है सिंपली सिर्फ वॉशिंग ऑपरेशन के लिए है। जो आजकल मशीन आ रही है जिसमें ड्रायर भी है, तो और इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है ताकि हम उन मशीन्स को भी ऑपरेट कर सकें। ये जस्ट एक बहुत स्मॉल आइडिया था मेरा, जिसमें हमारे चेयरपर्सन सर और मैम ने मुझे मोटिवेट किया, तो मैंने इसके ऊपर 2-3 दिन में थोड़ा लग के काम करती हूँ। और एक बेस्ट पॉइंट इसका ये है कि इसमें जितना भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो टोटली वेस्ट है, जो हमने स्क्रैप वाली शॉप से खरीदा है। पुरानी वॉशिंग मशीन है, पुरानी साइकिल है, पुलिस बेल्ट सब पुराने हैं, और इस पर टोटली जो एक्सपेंड हुआ है हमारा वो 3,500 हुआ है, 3,500 ऑलमोस्ट।
best. यहाँ आने से पहले आपकी वाइस चांसलर जो थी मेरी कलीग थी यूजीसी में, और तब मुझे मालूम नहीं था इनकी इतनी सारी खूबियाँ, किस तरह से ये she is able to connect to all of you. I think this is great, and during my 10-12 years of service in higher education sector, I have visited several universities. There are very few vice chancellors who are able to connect to the students in this community. और उसके अलावा जो उनका सोशल कमिटमेंट है, which is demonstrated through these kind of things, is remarkable. I think this is a huge opportunity for all of us, in this university, to really become an exemplar on fostering social responsibility. I think Ernakulam एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती है जिसको हमेशा बोला जाता है कि जो 100% लिटरेसी इन लोगों ने अचीव की है, and whenever we talk of साक्षरता की जब बात होती है तो अर्नाकुलम का नाम आता है. तो इसी तरह I think I'm sure that under her leadership this university can actually become an exemplar in fostering social responsibility, and I have no reason to dispute. I'm very confident that जो हमने थोड़ा सा पीड़ा उठाया है कि अपने जो उच्च शिक्षा को समाज के साथ में फिर से कनेक्ट करने का, और मैंने बहुत जगह ये बात की है. It is resonating with lot of people. It is resonating with lot of people. तो जो चिंगारी यहाँ पर लगी है मेरे ख्याल से बहुत दूर तक जाएगी, और इसके साथ ही आई थिंक उसमें और थोड़ी सी हवा देने के लिए मैं करूँगा. परिचय तो उनका दिया जा चुका है, परिचय उनका दिया जा चुका है. उन्होंने इस एरिया में बहुत काम किया है, और जैसा कि रवि साहब ने आपको बताया कि IIT से बीटेक करने के बाद में IIM में फिर MBA करने के बाद में कोई कंसल्टिंग कंपनी या फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं गए, फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट में उन्होंने PhD की. थोड़े से अलग है. एंड मेरे ख्याल से डॉक्टर टंडन आप कैसे अलग हैं बाकी सब लोगों से, वो आप उनकी भाषा से कुछ सुनिएगा. एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ अस विल बेनिफिट फ्रॉम. Thank you very much. About the scholars who have written about purpose of higher education institutions. 3 purposes are simultaneously mentioned. The first purpose is knowledge production, research. The second purpose is teaching. That's why all of you are here. And the third purpose is always mentioned as service. Those 200 universities about which Professor Kapoor referred to in his lecture, the top 200 ranked universities in the world, the basis on which they are ranked as top 200 is only and only research. That basis does not include the quality of education that 10 minutes ago we saw your Vice Chancellor as a professor deliver to this auditorium. And that does not include anything to do with service. It is unfortunate that higher education institutions today are being ranked only on the basis of refereed research articles by their professors and the amount of dollars they receive as research grants. Therefore, when we talk about role of universities in societal development, as Professor Mittal always refers to, or fostering social responsibility in higher education, we have to think about its 3 purposes in an integrated manner. It is not that we will do research in the lab, we will give teaching in rote learning manner as other speakers have mentioned,
We will deliver some knowledge in your head and you will rectify it and deliver it in the classroom, and those who deliver better in the exam get 99%. It has nothing to do with what you know or whether you know how to know. Learning how to learn is the meta skill that is critical to continue to learn in life. And if teaching in higher education does not encourage questioning, critiquing, thinking, then that teaching does not encourage learning how to learn. And that is precisely why in many international competitive examinations, not only the ASAP survey, many of our students don't do very well, even though they are very bright, because they have been taught as if to mug up some information, and only if the question is directly related to the information you have mugged up. It is almost like we become the computer. We have stored information through teaching, and if the question that is asked in examination presses the right button, then the information comes out of our hands or typing or pencil or whatever, and we get good marks. If the question is somehow related to application or thinking, then our result is very poor. So, I want to emphasize, number one, that research and teaching both are important and should combine the third function of higher education, service. Unfortunately, many a times research and training in higher education institutions is kept in one side and service is delivered to other side. A lot of activity under NSS in India has that flavor. You are learning in the classroom economics, but you are not providing any service to anybody in relation to your knowledge of economics. You are learning economics, but what service you provide? You go and clean the village, because that is your service. That is keeping the service function disconnected from what you are learning in the higher education. An integrated approach to the three purposes of higher education would require us to combine them in a meaningful manner. What we study as a subject is what we then do research on, and combining the two, we provide service to society. I think the new way of thinking that has emerged, to which both Dr. Mittal and Dr. Agarwal referred to, is to move ahead in the future in order to combine these three things. And I want to give you some examples of how this is a practice now gaining universal momentum. Many Indian examples you have already heard, you will hear more. My colleagues from Priya will tell you some examples in the afternoon. But before I give you those international examples, I want to tell you a story. And I am deliberately speaking in English. The story is like this. I finished my IIT, I finished my IIM, and I went to some villages to do my research on rural development. I was young, I was smart. I thought I had conquered the world of higher education. What better can you do in those days? In the first month of living in the villages of southern Rajasthan, all my arrogance about my knowledge was washed away. I quickly realized that these people living in the villages who were called illiterate were actually not ignorant. They were extremely knowledgeable. And this followed me
who was called highly educated, was actually not knowledgeable. In the process, I discovered that the knowledge that the community of the villagers, the farming community there, the water nomadic community there, had gained was a knowledge that they had acquired in the practice of life over generations. It was not a knowledge which they had acquired by attending a classroom, listening to a lecture, or reading a book, because they had no access to that. They did not know alphabets and they had no access to a classroom. So this was the knowledge required. Now then I went back and started questioning what is knowledge and therefore what is research. Because my training as a researcher was to think, to use my cognition and manage symbols, numbers, and to reach a conclusion. So I was trained as a researcher in the classical tradition of cognitive knowledge. But I discovered that there is a lot of knowledge that these people had by doing, knowledge through action, knowledge through living. Whether it was knowledge about agriculture, knowledge about animal husbandry, knowledge about water storage, knowledge about forestry, multi-cropping, all these are. They had that knowledge. So then, the monolithic approach to cognition as the mode of knowledge production, thinking as the only mode of knowledge production was challenged, and acting, doing as a mode of knowledge production became prominent. And as Pavanji read out Rifkin's statement earlier in the morning, feeling as a way of knowing. So knowing, modes of knowledge production are cognition, the traditional classical meaning, cognition, thinking. I am thinking. Normally, if you are a thinking professor, you are supposed to look at the roof and think. And if you are an average person, you go and do something and learn from that. You don't think. You think afterwards. First you do it, because it needs to be done. So modes of knowledge production are knowing through thinking, knowing through acting and doing, and knowing through feeling. My best example about knowing through feeling is that many of you at the back, not understanding my English language, would be feeling a bit bored at the moment. If you are feeling bored, that means you are knowing that this lecture has no relevance to where you are. That feeling is authentic, genuine, and an important indicator for knowledge production. So, participatory research began to open up the discussion that knowledge production can happen through thinking, through acting and doing, and through feeling as well. If we accept this perspective, if we accept this approach, then production of new knowledge can happen through a combination of these modes. And it need not be limited to the knowledge that is either codified in books or delivered in classrooms. तो इस ज्ञान के हमारे यहाँ तो जानते त्रिमूर्ति का बड़ा चलन है, त्रिमूर्तियाँ चलती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश टाइप। तो ज्ञान की सृजन की त्रिमूर्तियाँ, नॉलेज प्रोडक्शन की, ज्ञान पैदा कैसे होता है, वो त्रिमूर्ति क्या है? सोचना, महसूस करना और कुछ काम करना। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हायर एजुकेशन में सोचा और लिखा हुआ ज्ञान तो सर्टिफाई हो जाता है और डिग्री बढ़ जाती है,
पर एक्शन वाला ज्ञान जो है वो सर्टिफाइड नहीं हो पाता और इसलिए डिग्री नहीं मिलती। जितने बढ़िया गायक गायिकाएं हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे उस इलाके में बेगम अख्तर जी हुआ करती थी, वो 8वीं दर्जी फेल थी और उनकी गायकी पूरे देश में महसूस थी, पर कोई यूनिवर्सिटी